Okay, good morning, ninth standard. Hope you all are safe and happy birthday to those who are having their birthday today. So, today we are going to read the new topic that is towards the new constitution. We have already discussed about the meaning of apartheid and how the people were struggling against it. We have already read on page number 41. So, now the new constitution, which was formed in South Africa, we are going to read that. So it is on page number 42. So after everybody knows that Nelson Mandela was the first president of South Africa, and he was imprisoned for 28 years in the jail because he was fighting against apartheid. So when he was free आफ्टर 28 ईयर्स 28 साल के बाद जब उनको फ्री किया गया देन ही वॉकड आउट ऑफ अ जेल एज अ फ्री मैन नाउ अब उनको किसी चीज़ का डर नहीं था बिकॉज ऑलरेडी उनको जेल में डाल चुके थे एक चीज़ के लिए दैट वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट और फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड. Finally, at midnight of 26 April 1994, a new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. और जैसे ही वो जेल से बाहर निकले उन्होंने 26 अप्रैल, रिमेंबर द डेट, it can be asked in MCQs also, fill in the blanks also. So after getting out from the prison on 26th April 1994, the new flag was there. That flag symbolized the Republic of South Africa, that the flag was raised, and it means that yes, now they are republic, now they will be not under anybody else. So after independence, after got republic for I'm sorry after get republic after getting republic, they formed a new constitution, okay, new democratic in South Africa, so that the people should know their rights and values. So I'm just telling you from where I'm reading. So it is here, okay. Now I have underlined also. So this year 26th April 1994, this can be asked as MCQ. Now this paragraph I'm reading. Now in this question, the question can comes from how the new constitution of South Africa was formed. So please these questions write it down in your notebook also, है ना, बिकॉज सम पीपल थिंक्स कि मैम ने आपको नोट दिया है और मैम हमको क्वेश्चन आंसर्स भी देंगी. नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, आई विल बी नॉट गिविंग यू एनी क्वेश्चन एंड आंसर्स. You yourself have to make questions out of the notes and you have to write the answer. So from this paragraph the question comes, how the new constitution of South Africa was formed. साउथ अफ्रीका का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे फॉर्म हुआ. सो जब नेल्सन मंडेला जेल से बाहर निकले तो उन्होंने क्या किया, एक अपना फ्लैग फहराया जिससे कि ये बताया कि नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ डेमोक्रेटिक country. So what happened? A new democratic of South Africa was there, where black leader, not the white one, the black leaders appealed to fellow black to forgive the whites for the atrocities. Now उस डेमोक्रेसी में ये था कि जितने भी ब्लैक पीपल हैं साउथ अफ्रीका के, वो जितने भी वाइट पीपल के अत्याचार हैं, एट्रोसिटीज़ मतलब क्या होता है, अत्याचार, द पेन जो वाइट ने ब्लैक को दिया था वो सब क्या कर जाए, भूल जाए और वाइट को फॉरगिव कर दे. दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर. उन लोगों ने ये प्रण लिया कि व्हेन एवर दे विल बी इन पावर, है ना, जो डेमोक्रेसी बनी रही है तो अब कौन पावर में है, ब्लैक पीपल. तो उन्होंने ये बोला कि हम वाइट पीपल के जो भी उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया हम उसको सब क्या कर देंगे, भूल जाएंगे. Second point, they said let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women on democratic values. Second point क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस था वो ये था कि सारे लोग इक्वल हैं, चाहे मैन हो चाहे वो वुमेन हो, और रेसिज्म उसमें नहीं आएगा. डेमोक्रेसी में जो पॉइंट होता है ना रिया, दैट वी शुड गिव इक्वल राइट टू ऑल द कलर, ऑल द कास्ट, वी शुड गिव इक्वल रिस्पेक्ट. तो साउथ अफ्रीका ने भी वही बोला कि हमारे भी डेमोक्रेसी में सारे रेसेस को, मैन वुमेन सबको क्या दी जाएगी, इक्वल वैल्यूज़ दी जाएंगी. थर्ड पॉइंट, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स. जो भी सोसाइटी है
अगर कुछ भी चीज़ गलत हो रहा है तो उसका जस्टिस लिया जाएगा और ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होगी. The party had ruled through the oppression and brutal killings, and party that led the freedom struggle together drawn up the common constitution. Constitution कैसे बना? बहुत सारे लोग जो लड़ रहे थे उन जब जब वो मारे गए. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब ANC फॉर्म हुआ था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो क्या हुआ था, बहुत सारे मूवमेंट्स हो रही थी जिससे कि जो वाइट पीपल थे उन लोगों ने काले लोगों को मारना शुरू कर दिया, उन टॉर्चर करना शुरू कर दिया. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो सारे लोग जो मारे गए थे उनके लिए एक श्रद्धांजलि भी थी कि येस यू पीपल हैव डन अ लॉट फॉर द कंट्री. सो आपकी जो फ्रीडम है, आपकी जो आपने जो हमारे लिए किया, वो क्या हो जाएगी, हम उसको ज़ाया नहीं जाने देंगे. तो दैट इज़ वाई दे हैव मेड अप अ डेमोक्रेसी, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ें रखी. पहली क्या थी? पहली ये थी कि वाइट पीपल को एट्रोसिटीज़ करना है, फॉरगिव करना है वाइट को. सेकेंड, इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, ऑल मेन एंड वुमेन विल बी equal. Third point है social justice and human rights. These are the 4 points that were made in the new constitution of South Africa. Again I'm telling you, I'm showing you the book. Please in the book mark it and write the question here, so that when you'll go through the book also you can get to know कि कौन से question का क्या आंसर है. How the new constitution of South Africa was formed, कि मतलब उसका जो बेस था कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या था, कौन से बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो हमने अभी पढ़ा है. सो नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं. विच वैल्यूज़ आर इम्बाइडेड इन साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन. कौन कौन सी वैल्यूज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन में. डेमोक्रेसी का बेस पढ़ लिया. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो BR अम्बेडकर ने लिखा, हमारे सर्टन रूल्स हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है. तो साउथ अफ्रीका में भी कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो कौन सी वैल्यूज़ पे बना, दैट वी आर गोइंग टू रीड. दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी ऑफ द कंट्री. ओके, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना था. हम बोलते हैं सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का था, तो दैट वाज साउथ अफ्रीका. सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बोला कि हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड वैल्यू थी वो ये थी कि हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे. हम कोई भी ऐसा नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको हटाएंगे नहीं, हम उसको सोचेंगे नहीं. जो भी प्रॉब्लम आती है कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान में हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे. ठीक है. नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डेमन, है ना. हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालेंगे. हम किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे. थर्ड पॉइंट, दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंट इन द पास्ट. मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लोग आएंगे, वो भी लोग आ सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है. बिकॉज डेमोक्रेसी में उन्होंने बताया था दैट they will forgive all the whites what they have done to them. So कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने वाइट्स को भी अधिकार दिया कि दे कैन ऑल्सो कम. द प्रीएम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन स्लम्स टू दिस स्पिरिट. नाउ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको स्पिरिट कौन दे रहा है? प्रीएम्बल. नाउ आपको पता होगा प्रीएम्बल क्या है. It is a philosophy on which the entire constitution has been built. Okay, constitution में क्या क्या philosophy है. It can be called as the first page of the constitution, जो सारा constitution का आधार बता, that is a preamble. So I'm just showing you the page from where I was reading. So this is the next paragraph. Okay, and the question which comes from this paragraph is, which values are imbibed in South African कॉन्स्टिट्यूशन. साउथ अफ्रीका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी उनमें कौन कौन सी वैल्यूज़ डाली गई थी, ताकि लोग अपने आप को जब साल बाद जब अपने आप को देखे तो उनको लगे कि यस कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो बहुत ही अच्छा बना, सब लोगों के देख रेख में बना था. तो फर्स्ट पॉइंट वाज
This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in the any of the country. लोगों को इसने इतना ज़्यादा राइट दिया है कि द पीपल वर वेरी हैप्पी. जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें राइट्स लोगों के लिए बनाए गए थे. सेकेंड, दे डिसाइडेड दैट इन सर्च ऑफ अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम नो बडी शुड बी एक्सक्लूडेड. अगर हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो हमको सारे प्रॉब्लम्स को देखना है जो एक पीपल फेस करता है. ऐसा नहीं कि हमने वाइट की प्रॉब्लम्स को छोड़ दिया, ब्लैक की प्रॉब्लम्स को ले लिया. ऐसा नहीं, हमें सारे इंडिविजुअल पीपल के प्रॉब्लम्स को लेके क्या करना है, उसको सॉल्यूशन निकालना है. नो बडी शुड बी ट्रीटेड एज डीमन. जनरली दे आर टॉकिंग अबाउट द वाइट पीपल ओनली. द थर्ड पॉइंट, दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बन रहा है उसका पार्ट सब बनेंगे. दे कैन बी वाइट, दे कैन बी ब्लैक, बोथ ऑफ देम कैन बी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द लास्ट पॉइंट, द preamble to the South African Constitution slum of the spirit. Now जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका मेन बेस क्या है, preamble है, which was also made by the South African people. So I think okay, one more topic is there. So let me cover that, then we'll be moving towards why do we need a constitution, the importance of constitution. Okay, so about the preamble. Okay, so the next page which I'm reading is page number 43. So from that paragraph the question comes, how South Africa constitutional inspired everyone. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसने लोगों को कैसे इंस्पायर किया. द फर्स्ट पॉइंट यू कैन मेक आउट इज दैट कि जो पहले अनडेमोक्रेटिक कंट्री थी अब वो क्या हो गई, डेमोक्रेटिक हो गई. अब ना वो एक क्या है, लोगों के लिए एक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है. ना लोग द पीपल आर लर्निंग फ्रॉम द डेमोक्रेसी विच वाज मेड बाय साउथ अफ्रीकन पीपल. सो पहला पॉइंट क्या है, कैसे इंस्पायर किया. जितने भी अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने साउथ अफ्रीका की जो डेमोक्रेसी है उससे दे स्टार्टेड लर्निंग. सेकेंड, जो डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर टू ट्रांसफर बेटर एक्सपीरियंस इनटू बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन. लोगों ने और लोगों को मतलब जब डेमोक्रेसी बना तो द पीपल वर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द वर्क्स. सो they transfer the bitter experience matlab whatever the whites have done to them, so they have transferred that bitter experience into binding glue to rainbow nation. Okay, rainbow nation means kya hai, all the people were all together, like the whites, the blacks and the Indian natives, all they were all together. That is why it is also known as rainbow nation. अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया रेनबो तो प्लीज़ डू नॉट से दैट मैम ने हमें नहीं पढ़ाया. इट इज़ देयर. रेनबो मतलब डिफरेंट कलर्स विच वी कैन सी इन द रेनबो. सो द पीपल आर आइडेंटिफाइड विद डिफरेंट कलर्स, दे आर आइडेंटिफाइड एज रेनबो. सो फर्स्ट पॉइंट इज द पीपल हैव लर्नड दैट the people of undemocratic country, they have learned to make learn from South African people how to make a good democracy. Second, the people have forget all the bitterness experience and bind the nation into rainbow nation. थर्ड इंस्पिरेशन ये था कि वहाँ के लोगों ने बोला दैट वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट द रेसिस्ट एंड द ब्रूटल एंड द रिप्रेसिव पास्ट अगेन. जो भी हमारे साथ हुआ है हम उसको वापस से रिपीट नहीं करेंगे. सो दैट वाज द इंस्पिरेशन of the people which were living in South Africa. I'm just showing the paragraph from where I was reading. Okay, so this is the paragraph. I have marked it also. Okay, so the first point which I have read, that a state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as a model of the democracy. Okay, पहले this was called the undemocratic country because there was a difference between the black and the white. So now it was called as a proper model of democracy. First point. Second point, transfer bitter experience into binding glue of rainbow nation. The people have forgot everything what they have faced and they have formed a rainbow nation. Third point, to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. That we are not going to repeat the past
again. So from these 3 points the question comes, how South Africa constitutional inspired everyone. किस तरीके से अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को इंस्पायर किया? पहला, अनडेमोक्रेटिक से डेमोक्रेसी बन गया, फॉरगिवनेस का लेसन सिखाया, और थर्ड, पास्ट को भुलाने का जो चीज़ें हैं वो भी उन्होंने लोगों को सिखाया. सो दीज आर द 3 points. सो टुमारो वी आर गोइंग टू रीड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. प्लीज़ मार्क दीज 3 questions. You can write in the notebook also, and please go through the books also as well as the notes. Thank you, class.